राजेश्वरी जी अभी थी लेकिन अभी शायद नहीं है, चलेगी। अभी आ गई है जी। तरल भाई आवाज संभળાય છે? लेकिन अभी शायद नहीं है, चलेगी। We are live on YouTube or we are live and we are recording also. So I would request Atul ji to start with the formalities. In the meanwhile, I will log in Rajeshwari ji on. Hello. Yeah, Rajeshwari ji, it's fine. We are beginning. Okay. हाँ जी अतुल जी. यस, रेवा लॉज वडोदरा, रोहित लॉज अमदावाद અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ત્રિવેણી મંગળવાર પ્રવચન એ જ્વેલ ઓન એ સિલ્વર પ્લેટર ના લેખક શ્રી પી કૃષ્ણાજી તથા પ્રવચન કરતા રાજેશ્વરીબેન દવે, રંજનબેન વૈદ્ય અને શ્રી હર્ષદભાઈ દવે તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વે સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજના પ્રવચનની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કેશવબેન કરાવશે. કેશવબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. આજના પ્રવચનની આગળની કાર્યો માટે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આમંત્રિત કરું છું. શ્રી તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. जी बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई और सभी वक्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ. राजेश्वरी जी, हर्षद जी और रंजन जी, रंजनबेन जी और कृष्णा जी का विशेष स्वागत करता हूँ कि वे एक लेखक के रूप में यहाँ मौजूद हैं. जैसा कि मैंने मैसेज में भी लिखा था, इस कार्यक्रम के अंत में प्रश्न उत्तर के बजाय हम सीधे कृष्णा जी से इस किताब के बारे में या जिसको भी जो प्रश्न पूछना हो, कोई भी मन में वो संशय हो, कुछ और सुझाव देना हो, तो उसके लिए वे हाजिर रहेंगे. तो इसलिए मैं क्विकली अब सभा की ओर बढ़ता हूँ. सबसे पहले राजेश्वरी जी इंग्लिश में कहेंगी 18 मिनट, उसके बाद हर्षद दवे जी 9 मिनट में उसका गुजराती सारांश करेंगे और रंजन बेन जी अपने उसको हिंदी में 9 मिनट में करेंगी. पुनः पार्ट 2 इसी तरह रिपीट होगा. सारे वक्ताओं से निवेदन है कि वे अपने समय सीमा का ध्यान रखें क्योंकि हमारा आज एक और कार्यक्रम उसके बाद है. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले मैं राजेश्वरी जी का परिचय देना चाहूंगा. राजेश्वरी जी बीएससी एमएड है कोविड से और कोविड किया है उन्होंने. आप मुंबई में पली बढ़ी हैं. मुंबई की गोखलीबाई स्कूल में और राजकोट की कोटक गर्ल्स स्कूल इंग्लिश स्कूल में बतौर आचार्य कई साल कार्यरत रही हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से उन्हें संगीत और साहित्य की रुचि भी थी. इसी कारण उन्होंने कई साहित्यकारों को रूबरू मिलने का उन्हें सौभाग्य मिला और कई बार साहित्यिक वक्तव्य देने का भी उन्हें मौका मिला. पिछले कई सालों से, शायद 6-7 सालों से वे बड़ौदा में हैं और वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य वो संगीत के उसमें, इसके अलावा थियोसॉफी के लिए कर रही हैं. और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की इस विशेष सभा में जो 3 तारीख आज यानी 10 तारीख को भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि 11 मई को उनका जन्मदिन है, उन्हीं का सजेशन था कि वो इससे शुरुआत करें. तो आई वेलकम राजेश्वरी जी. प्लीज गो अहेड विथ योर स्पीच. थैंक यू. Respected and dear all the brothers and sisters, today I have got the opportunity to speak about Padmanabhan Krishna's book, A Jewel on a Silver Platter, remembering Jiddu Krishnamurti. Myself and my husband, got the chance to meet P. Krishnamurti twice. As per Triveni tradition, my speech will be in 2 parts. In the first part, I will talk about P. Krishna, the author of the book. And in the second part,
about some of the content of the first chapter of the book. P. Krishna says about his friend J. Krishnamurti that he was the Buddha consciousness for many, the Socrates of the 20th century for some, and more of a phenomenon than a person. As remarked by Vimla Tai in an interview with P. Krishna, Krishnamurti was an extraordinary person with a quality of consciousness which cannot be explained in any rational terms. And he himself was not able to explain how he came to that consciousness which was free of all ego constraints. P. Krishna, the author of the book, is a remarkable man with an acute scientific mind and a great spiritual sensitivity. He was born in Chennai, but brought up in Indore, where his parents were educationists. He did his master's in physics at the Delhi University and PhD from the Banaras Hindu University. There was published by, PhD work is published by John Wiley and Sons at New York. He worked as a faculty of the physics department at the university till 1986. He has published books and about or over than 70 research papers in an international journals. He has also been the chairman of the Commission of Crystallographic Teaching of the International Union of Crystallography. He was elected Fellow of the Indian Academy of Sciences, Bangalore, as well as Indian National Science Academy, New Delhi, and recognition of his research contribution. He has conducted postdoctoral research at the University of Cambridge and so on. The Cambridge Research Labs in Boston and the University of Bristol in England during his career as a scientist. In 1986, at the personal request of J. Krishnamurti, he took voluntary retirement from the university and joined the Rajghat Education Center of the Krishnamurti Foundation of India as its rector. And life is changed. He was also principal of the Rajghat Besant School till 2003. He is a life member of the Theosophical Society and trustee of the Krishnamurti Foundation, India. He is presently in charge of the Krishnamurti Study Center at Rajghat, Varanasi. He has delivered lectures and conducted dialogues on education, science, and spirituality all over the world. Collection of his talks have been published by the Theosophical Publishing House in India as 2 books. He was very much closely associated with Krishnamurti for nearly 3 decades, not 3 years, 3 decades. It is clear from several accounts in his book that Krishnamurti had a very special and affectionate appreciation of and regard for P. Krishna, whom he persuaded to become the rector of the Rajghat Education Center and also the principal of the Rajghat Besant School. Hardly 5 weeks before his death, J. Krishna said to P. Krishna, what does he say? He said, means Krishnamurti said to P. Krishna, that there are very few people in this world. There are very few people in the world I trust completely, and you are one of them. In his book, A Jewel on a Silver Platter, P. Krishna gives many details about the character of Krishnamurti and at the same time manages to maintain the mystery that Krishnamurti was whom he approaches with awe, respect, and humility. He tells us very much things about Krishnamurti, but does not claim to explain him.
It tells us so many things, but it does not claim that I will explain Krishnamurti. What a humble person P. Krishna is. Though the book is written in very simple English, anybody can read and understand. Krishnamurti's teaching is not easy to summarize, we all know. P. Krishna is happy to learn in this book Krishnamurti's own response when Krishnamurti was asked by someone to summarize his entire teaching in one sentence. Is it possible to entire teaching in one sentence? But the Krishnamurti said, attempt without effort to live with death in futureless silence. And another remark in the book clarifies Krishnamurti's view. Somebody asked Krishnamurti about his teaching, and he said, "Sir, there is no such thing as my teaching." Krishnamurti is telling to another person as a sir, "Sir, there is no such thing as my teaching. You don't have to understand the teaching. You have to understand yourself," which is very difficult. He said, you have to understand yourself. The entire purpose of the teaching is to make you realize the importance of understanding yourself. The book reveals both the warmth of the Krishnamurti as well as his extraordinary consciousness. P. Krishna's detailed exploration of many aspects of Krishnamurti's teaching regarding serious human issue is clear and insightful. In her judgment, P. Krishna is the best living expositor of Krishnamurti's teaching. I am personally grateful that P. Krishna has written this book. What happened? What does else Mr. P. Krishna tells? Krishna has brought an enormous amount of information about the extraordinary nature of K through his personal recollection of his numerous meetings with Krishnamurti and sensitive interviews with people like Vimlatai, Achyut Patwardhan and Radha Baniya, who were very close to Krishnamurti. He enjoined them to speak candidly for the sake of those who would not have the opportunity to know Krishnamurti personally. P. Krishna has written in his book that Krishnamurti was a very jovial, amiable, and affectionate person, light-hearted, happy, and extremely sensitive. He would laugh heartily and had a great sense of humor. He made many jokes, but it is not possible for me to describe these all things here. For that, you have to read the book. You have to read the book. With this, I end my first part of my speech. We will talk about the content of the first chapter of the book. You all will surprise because when we read, we also surprised to know that what is the main quality of the book and how the P. Krishna has written very nicely that the book is not meant to be read sequentially like a novel. It is not compulsory that you have to read like a novel, one chapter, then second chapter, then third chapter. It is not like that. We can read any chapter we wish, even if we have not read the previous ones. So now we will switch over to the next part. Next part is little bit lengthy but I'll finish it in time and we will see to the next thing. Thank you very much all. Thank you, Rajeshwari ji, for completing it in a wonderful time. And Harshad bhai, now I invite you for the Gujarati translation of whatever is spoken here. और उससे पहले मैं हर्षवर्धन जी का परिचय दे दूं. वे M.Com LLB हैं, CAII भी हैं और राष्ट्रभाषा रत्न भी हैं. वर्क एक्सपीरियंस में वो बैंकर की तरह रिटायर्ड हुए. 26 साल उन्होंने बैंकिंग सर्विसेज की. उनकी शौक की और उनकी रुचि का विषय है राइटिंग, रीडिंग, ट्रांसलेशन, लिटरेचर, पोएम, म्यूजिक. और उनकी करीब 40
किताबें जो हैं वो ट्रांसलेशन के द्वारा छप चुकी हैं। 2 किताबें उनकी खुद के द्वारा लिखी हुई छप चुकी हैं और रिसेंट पब्लिकेशन उनका जे कृष्णमूर्ति पर रहा है। और वैसे उन्होंने काफ़ी सारे और भी डिजिटल वेबसाइट्स और उसके लिए उन्होंने कार्य किए हैं। बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाले हर्षद भाई। सबसे गर्व का विषय ये है कि उन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी है, जिसके बारे में मैं सभा के अंत में जब मैं कृष्णा जी के साथ रहूंगा या कृष्णा जी जब मंच पर रहेंगे तब उनके बारे में भी, उनके लिखी हुई पुस्तक के बारे में भी जानकारी दूंगा जो उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेट की है। आइए हर्षद भाई, आपका स्वागत। धन्यवाद तरल भाई, તમારો આભાર। આજે આપણે જીડ્ડુ કૃષ્ણમૂર્તિ એમના જન્મદિવસ ને 2 સપ્તાહમાં ઉજવવાના છીએ। તેમાંનો આ પ્રથમ સપ્તાહ છે। તેમાં A Jewel on the Silver Platter એ નામના પુસ્તકની શ્રી પદ્મનાભન કૃષ્ણાજીએ જે પુસ્તક લખ્યું છે એમના વિશેની વાતો કરવાની છે અને એમના જે લેખક છે પદ્મનાભનજી કૃષ્ણા એમના વિશે પણ આપણે વાત કરશું। તો આ પ્રથમ ભાગની અંદર આપણે પહેલા એ પુસ્તકના લેખક શ્રી કૃષ્ણાજી એટલે કે પદ્મનાભન કૃષ્ણાજી, હવે આપણે એમને કૃષ્ણાજી કહીશું, એમના વિશે હું વાત કરીશ અને બીજા ભાગમાં આપણે એમના શિક્ષણ વિશે વાત કરશું, જે કૃષ્ણમૂર્તિના શિક્ષણ વિશે। આ પુસ્તક જે કૃષ્ણમૂર્તિના સંદર્ભમાં જ લખાયેલું છે। તો આપણે એ જોઈએ ને આદરણીય ભાઈઓ અને બહેનો, આજે મને શ્રી પદ્મનાભન કૃષ્ણાના પુસ્તક અ જ્વેલ ઓન અ સિલ્વર પ્લેટર એનો હિન્દીમાં અનુવાદ પણ થયો છે, જેમાં સંસ્મરણ અને વ્યક્તિત્વ એવો ભાગ 1 છે એમનું નામ। એ પુસ્તક વિશે કંઈક કહેવાની અને એ રીતે આપણે કૃષ્ણમૂર્તિને યાદ કરવાની મને અનુપમ સુયોગ સાંપડ્યો છે। અમને શ્રી પદ્મનાભન કૃષ્ણજીને એટલે કે પી કૃષ્ણાજીને મળવાની તક 2 વખત મળી છે। પહેલી વાર અમે તેમને વારાણસીમાં મળ્યા હતા અને બીજી વાર વડોદરામાં। ત્રિવેણી પરંપરા અનુસાર મારું વક્તવ્ય 2 ભાગમાં રહેશે। પ્રથમ ભાગમાં હું શ્રી પી કૃષ્ણા કે જેઓ આ પુસ્તકના લેખક છે તેમને વિશે વાત કરીશ અને બીજા ભાગમાં આપણે એ પુસ્તકનો થોડો અંશ જોઈશું। એ વાત હું કહી ગયો। પોતાના મિત્ર જે કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે પી કૃષ્ણા કહે છે કે ઘણા લોકો માટે તેઓ બુદ્ધની ચેતના ધરાવે છે। અમુક લોકો કહે છે કે તેઓ 20મી સદીના સોક્રેટિસ છે અને કેટલાક લોકો માટે તેઓ વ્યક્તિ નહીં પણ વિસ્મય હતા। વિમલા ઠક્કર શ્રી પી કૃષ્ણા સાથેના એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહે છે કે કૃષ્ણમૂર્તિ એક અસાધારણ માનવ હતા। તેઓ એવી ચેતના ધરાવતા હતા કે તેને કોઈ પણ બૌદ્ધિક વ્યાખ્યા પ્રમાણે સમજાવી શકાય નહીં અને તેઓ પોતે પણ એ સમજાવી શકે તેમ ન હતા કે દરેક પ્રકારના અહમથી મુક્ત એવી ચેતનાનો આવિર્ભાવ તેમનામાં કેવી રીતે થયો। પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખક શ્રી પી કૃષ્ણા એ એવી ગણનાપાત્ર વ્યક્તિ છે કે જેઓ તીક્ષ્ણ બુદ્ધિમત્તા અને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સંવેદના ધરાવે છે। તેઓ ચેન્નઈમાં જન્મ્યા છે અને જ્યાં તેમના માતા પિતા શિક્ષણશાસ્ત્રી હતા તે ઇન્દોરમાં મોટા થયા છે। તેઓ દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી 1959માં ફિઝિક્સમાં માસ્ટરની ડિગ્રી મેળવી અને પીએચડીની ડિગ્રી 1962માં બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાંથી તેમણે મેળવી છે। તેમના પીએચડીનો થીસિસ ન્યુયોર્કમાં જ્હોન વિલી એન્ડ સન્સ દ્વારા 1966માં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો અને એ પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો અને એનું નામ હતું પોલીમોર્ફિઝમ એન્ડ પોલીટાઇપિઝમ ઇન ક્રિસ્ટલ્સ। તેમણે એ યુનિવર્સિટીના ફિઝિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં 1986 સુધી ફેકલ્ટી તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો। તેમના 2 પુસ્તકો અને 70થી વધારે સંશોધન પત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય સામયિકોમાં પ્રકાશિત થયા છે। તેઓ કમિશન ઓફ ક્રિસ્ટલોગ્રાફિક ટીચિંગ ઓફ ધી ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ ક્રિસ્ટલોગ્રાફીના ચેરમેન પણ રહી ચૂક્યા છે। તેમના સંશોધનમાં પ્રદાન માટે તેમની ફેલો ઓફ ધ ઇન્ડિયન એકેડેમી ઓફ સાયન્સીસ બેંગ્લોર તથા ઇન્ડિયન નેશનલ સાયન્સ એકેડેમી ન્યૂ દિલ્હીમાં પસંદગી થઈ હતી। પોતાની વૈજ્ઞાનિક તરીકેની કારકિર્દીમાં તેમણે યુનિવર્સિટી ઓફ કેમ્બ્રિજ, ધ યુનિવર્સિટી ઓફ વિસ્કોન્સિન, ધ કેમ્બ્રિજ રિસર્ચ લેબ્સ ઇન બોસ્ટન
અને ઇંગ્લેન્ડની ધ યુનિવર્સિટી ઓફ બ્રિસ્ટોલમાં પોસ્ટ ડોક્ટરલ રિસર્ચ કર્યું છે. 1986માં કૃષ્ણમૂર્તિના અંગત અનુરોધ પર તેમણે એ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી અને તેઓ રાજઘાટ એજ્યુકેશન સેન્ટર ઓફ ધ કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયામાં રેક્ટર તરીકે જોડાયા. તેઓ રાજઘાટ બેસન્ટ સ્કૂલમાં 2003 સુધી આચાર્ય પદ પર પણ હતા. તેઓ આજીવન થિયોસોફિકલ સોસાયટીના સભ્ય છે અને કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઇન્ડિયાના ટ્રસ્ટી છે. હાલમાં તેઓ વારાણસીમાં રાજઘાટ સ્થિત કૃષ્ણમૂર્તિ સ્ટડી સેન્ટરના ઇન્ચાર્જ છે. તેઓ સમસ્ત વિશ્વમાં શિક્ષણ, વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા વિશે વક્તવ્યો આપે છે તથા સંવાદનું આયોજન પણ કરે છે. તેમના વાર્તાલાપોના સંગ્રહ પર 2 પુસ્તકો ભારતીય થિયોસોફિકલ પબ્લિશિંગ હાઉસ દ્વારા પ્રકાશિત થયા છે. તેઓ લગભગ 3 દશકા સુધી કૃષ્ણમૂર્તિ સાથે સંકળાયેલા રહ્યા છે. તેમના પુસ્તકોમાં આવતી વાતો પરથી એ સ્પષ્ટપણે ફલિત થાય છે કે કૃષ્ણમૂર્તિ પી. કૃષ્ણા પ્રત્યે અત્યંત લાગણી, સ્નેહ અને આદરભાવ ધરાવતા હતા અને તેમણે તેમને રાજઘાટ એજ્યુકેશન સેન્ટરના રેક્ટર બનવા માટે અને રાજઘાટ બેસન્ટ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ બનવા માટે સમજાવીને મનાવ્યા હતા. પોતાના મૃત્યુ પહેલાના 5 સપ્તાહ પૂર્વે જે કૃષ્ણમૂર્તિએ પી. કૃષ્ણાને કહ્યું, આ વિશ્વમાં એવા લોકો બહુ ઓછા છે કે જેના પર મને સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ હોય અને તમે તેઓમાંના એક છો. બહુ મોટી વાત છે. પોતાના પુસ્તક અ જ્વેલ ઓન અ સિલ્વર પ્લેટરમાં પી. કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે એવી ઘણી વિગતો આપે છે અને તેની સાથે ક્યારેક કૃષ્ણમૂર્તિના એ રહસ્યને પણ જાળવે છે કે જેનો તેઓ અહોભાવ, આદર અને વિનમ્રતાથી ઉલ્લેખ કરે છે. તેઓ કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે ઘણું કહે છે પરંતુ તેઓ તેને સમજાવવાનો દાવો નથી કરતા. કૃષ્ણમૂર્તિના દર્શનને તેમના શિક્ષણનો મર્મ પામવો, એમના દર્શનને કે એના શિક્ષણનો મર્મ પામવો સહેલી વાત નથી. જ્યારે કૃષ્ણમૂર્તિને કોઈ તેમના સમગ્ર શિક્ષણનો સારાંશ એક વાક્યમાં જણાવવા માટે કહે ત્યારે પી. કૃષ્ણા આ પુસ્તકમાં એ વિશે કૃષ્ણમૂર્તિનો પોતાનો પ્રતિભાવ જાણીને ખૂબ જ રાજી થાય છે અને કહે છે, એ વાક્ય છે, ભવિષ્ય રહિત મૌનમાં કોશિશ કર્યા વગર મૃત્યુ સાથે જીવવાનો પ્રયાસ, એટલે કે attempt without effort to live with death in futureless silence. અને પુસ્તકમાંની બીજી એક નોંધ, કૃષ્ણમૂર્તિનો પોતાના શિક્ષણ વિશે જે સ્પષ્ટતા કરે છે તે મુજબ કોઈએ તેમના શિક્ષણ વિશે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે તેઓ કહે છે, એટલે કે કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે, સર, અહીં મારા શિક્ષણ જેવી કોઈ વાત જ નથી. તમારે તમને પોતાને સમજવાના છે. આ સમગ્ર શિક્ષણનો હેતુ તમને પોતાને સમજવાનું મહત્વ સમજાવવાનો છે. આ પુસ્તક કૃષ્ણમૂર્તિની ઉષ્મા સાથે, એમની હૂંફ સાથે તેમની અસાધારણ ચેતનાને પણ પ્રકટ કરે છે. માનવીની ગંભીર સમસ્યાઓના સંદર્ભમાં કૃષ્ણમૂર્તિના શિક્ષણ પ્રત્યેના દૃષ્ટિકોણ વિશે પી. કૃષ્ણાનું વિગતવાર સંશોધન સ્પષ્ટ છે અને તે અંતરદૃષ્ટિ ધરાવે છે. તેમના મંતવ્ય મુજબ પી. કૃષ્ણમૂર્તિના શિક્ષણને આટલી સારી રીતે પ્રદર્શિત કરનાર એકમાત્ર જીવંત વ્યક્તિ છે. આ પુસ્તક લખવા માટે હું અંગતપણે તેમની આભારી છું, એમ કહે છે. કૃષ્ણમૂર્તિ સાથેની ઘણી વાતચીત પર પોતાની અંગત સ્મૃતિના આધારે અને પી. કૃષ્ણાએ કૃષ્ણમૂર્તિના અસાધારણ પાસા પર પુષ્કળ માહિતી આપી છે. તદુપરાંત કૃષ્ણમૂર્તિની નિકટ રહેલા વિમલા ઠકાર, અચ્યુત પટવર્ધન અને રાધા બર્નિયર જેવા લોકોના તેમણે લીધેલા લાગણીશીલ ઇન્ટરવ્યુનો પણ અહીં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમને કૃષ્ણમૂર્તિને વ્યક્તિગતપણે જાણવાની તક ન મળી હોય તેવા લોકો માટે આ લોકોની સાથે નિખાલસપણે વાત કરી છે. પી. કૃષ્ણાએ આ પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે કૃષ્ણમૂર્તિ બહુ જ આનંદી, મિલનસાર અને સ્નેહાળ વ્યક્તિ હતા. તેઓ સહૃદયી, ખુશમિજાજ તથા અત્યંત સંવેદનશીલ હતા. તેઓ મુક્તપણે ખડખડાટ હસતા અને તેમની રમૂજ વૃત્તિ પણ જબરદસ્ત હતી. આ સાથે હું મારા વક્તવ્યનો પ્રથમ ભાગ પૂરો કરું છું. આપણે આ પુસ્તકના પ્રથમ પ્રકરણની વિષય વસ્તુ વિશે બીજા ભાગમાં જાણશું. તમને સૌને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ પુસ્તક નવલકથાની જેમ એકી બેઠકે વાંચી જવા માટે નથી લખવામાં આવ્યું. આપણે મરજી મુજબ બીજું કોઈ પ્રકરણ ન વાંચ્યું હોય તેમ છતાં કોઈ પણ પ્રકરણ ગમે ત્યારે વાંચી શકીએ એમ છીએ. તો બહુ જ રસપ્રદ છે પુસ્તક, મજા આવશે. આપણે બીજા ભાગમાં એ વિશે જોઈશું, એનો થોડો અંશ આપણે માણશું. આભાર. Thank you, हर्षदભાઈ. You finished in right time. So thank you so much. रंजन जी, आपका स्वागत है. रंजन बहन, आपका संक्षिप्त परिचय दे दूं. उन्होंने प्रिंसिपलशिप काफी सालों तक किया है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ है एज एन मैनेजमेंट ट्रेनर.
उन्होंने इंडिया और मॉरिशस में लेक्चर्स दिए हैं। रिसर्च पेपर उन्होंने वेरियस यूनिवर्सिटीज में दिए हैं। संस्कृत में और ओरेटरी में उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त है। थिएटर का उनको एक्सपोजर है। उन्होंने कई नाटक किए हैं, साथ में बेस्ट एक्टिंग के अवार्ड जीते हैं। वे टीवी एंकर रही हैं और एक अच्छी अभिनेत्री और आर्टिस्ट रही हैं। उन्होंने डांस में बैले डायरेक्ट्स किए हैं, तो विशेषकर मीरा और आम्रपाली। बेस्ट शिक्षिका के अवार्ड से वे नवाजी गई हैं। वे एमए इंग्लिश, बीईडी और एलएलबी हैं और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल अमृतम क्रिएट किया हुआ है, जिसे वो नेक्टर ऑफ लाइफ कहती है। एक फेसबुक पेज भी इसी नाम से है और उनके इनसाइट्स और जो उनको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सारे चीजों को उन्होंने इसमें दर्शाया है। और पिछले कई दशकों से वो थियोसॉफी को एंजॉय कर रही हैं, काफी ज्ञाता हैं हर विषय की। आइए रंजन बेन, आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सुनाई देता है? हाँ बिल्कुल सुनाई देता है। ओके ओके। आप सबके भीतर विषय हुए नारायण को मेरा प्रणाम। तो प्रिय कृष्ण जी, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया, चांदी की थाली में एक रत्न, ऐसी बात जो जय कृष्णमूर्ति के बारे में बताते हैं वो मैं हिंदी में प्रस्तुत करूंगी। श्री कृष्ण उपरोक्त किताब में लिखते हैं कि उनके मित्र जय कृष्णमूर्ति बुद्ध चेतना थे। कुछ लोगों के लिए 20वीं शताब्दी के सोक्रेटिस थे और व्यक्ति होने से ज्यादा एक घटना थे। श्री कृष्णा के साथ संवाद करते हुए विमला जी ने कहा था, कृष्णमूर्ति एक असाधारण व्यक्ति थे जिनके पास चेतना की ऐसी गुणवत्ता थी जो तार्किक शब्दावली से नहीं समझाया जा सकता, और वो खुद नहीं समझा सकते थे कि वो सभी अहं की मर्यादाओं से मुक्त चेतना तक वो खुद कैसे पहुंचे। मुझे गर्व है कि विमला जी ने मुझे अपनी इंटीमेट ऐसी शिष्या बनाई थी। मुझे आनंद होता है आज ये प्रस्तुत करके। इस किताब के लेखक श्री कृष्ण जी परिशुद्ध वैज्ञानिक मन और महान आध्यात्मिक संवेदना के साथ नोंदपात्र व्यक्ति है। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था और वो इंदौर में पढ़े हुए थे, जहां उनके माता पिता शिक्षण शास्त्री थे। वे 1959 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से भौतिक शास्त्र में अनुस्नातक और 1962 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। उनका पीएचडी का महानिबंध था क्रिस्टल्स में पॉलीमॉर्फिज्म एवं पॉलीटिपिज्म नाम की इनकी किताब होकर 1966 में न्यूयॉर्क के जॉन विली और सन्स के द्वारा प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 2 किताबें और 70 से ज्यादा शोध पत्र 70 से ज्यादा शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल से प्रकाशित किए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के वो उन्होंने टीचिंग कमीशन के वो अध्यक्ष स्थान पर थे। उनके संसर्ग क्षेत्र में प्रावधानों के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बैंगलोर एंड इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली में से वे फेलो चुने गए थे। उनके वैज्ञानिक कार्यकाल में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, बॉस्टन में आई हुई कैम्ब्रिज रिसर्च लैब और इंग्लैंड में आई हुई बॉस्टन की और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की लैब्स में भी पोस्ट डॉक्टरल संशोधन किया था। 1986 में जय कृष्णमूर्ति की व्यक्तिगत विनती से उन्होंने यूनिवर्सिटी से स्वैच्छिक निवृत्ति ली थी और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया KFI के राजघाट शिक्षण क्षेत्र में वो रेक्टर की पदवी पर काम उन्होंने किया और 2003 तक राजघाट वेस्टर्न स्कूल में प्रिंसिपल भी रहे थे। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के लाइफ मेंबर है और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया के ट्रस्टी भी है। हाल में वे कृष्णमूर्ति अभ्यास केंद्र राजघाट वाराणसी के इंचार्ज भी है। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और आध्यात्मिकता पे पूरे विश्व में प्रवचन दिए हैं और संवाद किए हैं। मेरी कंपनी IPCL में भी उन्होंने हमारे मैनेजर्स और चेयरमैन के लिए मैंने इनवाइट किया था, तो उन्होंने इंटरेक्शन किया था उनके साथ और मेरे टीचर्स के साथ भी संवाद किया था और उनके प्रवचनों को एकत्रित करके भारत में
थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस ने 2 किताबों के रूप में प्रकाशित किया है। टाइम ओवर। नहीं रंजन जी, आप हिलते ना तो माइक का साउंड बीच में चला जाता है, वो शायद कपड़ों में टच हो रहा है आपका माइक, थोड़ा सा बदल लीजिए। हाँ, थैंक यू। वे करीब 3 दशक से कृष्णमूर्ति के साथ निकटता से संलग्न रहते थे और उनकी किताब में दर्ज की हुई कई बातों से पता चलता है कि के को उनके लिए खास विशिष्ट और वात्सल्यमय प्रशंसा का भाव था, सम्मान भी था। वो उन्होंने किताब में नहीं लिखा है, पर एक्चुअली तो कृष्णमूर्ति जी ने उनको बोला था कि इफ अ फादर वांट्स टू गिव हेरिटेज टू द सन, विल यू डिनाई? ऐसे करके उनको परसुएड किया था राजघाट में आने के लिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जिन्हें राजघाट शिक्षण केंद्र के रेक्टर और राजघाट बेसन शाला के प्रिंसिपल बनने के लिए समझाया था। उनके मृत्यु के 5 सप्ताह ही थे जब के ने श्री कृष्ण को कहा, विश्व में बहुत कम लोगों पे संपूर्ण विश्वास करता हूँ और तुम इनमें से एक हो। इस किताब में के चरित्र चित्रण की कई बातें लिखते हैं और साथ में के का रहस्य, जो इनके पास जाते हुए जो आश्चर्य, सम्मान और विनम्रता अनुभव करते हैं, इन्हें भी अच्छी तरह संभाल लेते हैं। वे कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, परंतु इनको समझाने का कोई दावा नहीं करते हैं। के को जब पूरा आपकी समग्र शिक्षा को एक वाक्य में कैसे संक्षिप्त करे ऐसा पूछा गया, तब वो कहते हैं, भावीहीन शांति में मृत्यु के साथ बिना प्रयास जीने का प्रयत्न। किताब में दूसरी नोट भी के का दृष्टिबिंदु स्पष्ट करती है। जब किसी ने उनकी शिक्षा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सर मेरी शिक्षा जैसा कुछ है ही नहीं, आपको शिक्षा समझने की जरूरत नहीं है, आपको अपने को समझना है। शिक्षा का संपूर्ण हेतु है आपको अपने को समझने का, महत्व को साक्षात देख सको, बस वही है। इसके साथ मैं पार्ट 1 का यहाँ विराम देती हूँ और पार्ट 1 के लिए दूसरे पार्ट के लिए बाद में। थैंक यू। थैंक यू रंजन जी। और मैं अभी आमंत्रित करता हूँ वापस राजेश्वरी जी को कि वे आए और अपना पार्ट 2 यहाँ पर अदा करें। धन्यवाद। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। Now we will start with the part 2, that is the content of the book for the chapter 1, and from that chapter 1, very little part which is possible for me to tell in the given time. The story of J. Krishnamurti's life is both a mystery and enigma of humanity to explore. How did a weak, dull child born in a very middle-class family in a small village in South India become something like the Socrates of the 20th century with virtually no formal education or training? How did Leadbeater, an adolescent of the Theosophical Society, discover this boy at the young age of 14 and predict that he was going to be the world teacher when all visible signs were to be the contrary? And they never wavered despite the considerable opposition and ridiculous faced by them because of this prediction. The boy was weak and imaginative. He could not attend any school or pass any examinations. Even Bernard Shaw laughed at any peasant, there goes your Mashiach. Despite all this, she was having very much confidence. She staked her entire reputation by announcing in the 1920s in her Whitehall lectures in London about the coming of the world teacher.
Subsequent events have proved that she was totally right. P. Krishna says about that Krishnamurti as I knew him. Normally, we describe a person by lineage, family, accomplishment, educations, and so on. But all these are irrelevant in describing Krishnamurti, who was Jivan Mukta. What is Jivan Mukta? A liberated soul. He lived with a dimensionally different consciousness about which we cannot know authentically until we can discover that state in ourselves. One can speculate, but how can one communicate the perfume of that man and his being? The problem I face in trying to describe it, P. Krishnamurti says, the problem I face in trying to describe him brings to my mind a dialogue in the Bhagavad Gita. Arjun asked Krishna, what the liberated man is like? How is look? How does such a person live? How does he act? How does he eat and sleep? Krishna gives a detailed reply, but the gist of it is outwardly, he looks the same as everybody else. He eats and sleeps and lives like them, and yet he is totally different because he does not do any of these things for the same reasons as the ordinary man. The difference is in the state of consciousness with which he lives, and that is important. Not his accomplishments, education, or all the lectures he may give, so on. Even without those things, his importance would be no less. How does one communicate that state? One senses it is in his presence, but it is not possible to put in words. What one can put into words are only the outer actions, the words that one heard, the thoughts that one had, and so on. One cannot convey the state of mind or consciousness from which those words emitted. It is something that one senses between the lines, having said that, let me try. Now the P. Krishna has described initial contact in Delhi from 1958 to 1959. What P. Krishna writes in his book, my first encounter with Krishnamurti's teaching was in 1955, when I was 17, studying in college in my hometown of Indore in north central India. See how the life and destiny gets turned. During a summer vacation, while going through one of my father's bookshelves, I came across a small booklet entitled Talks to Students by J. Krishnamurti. I had no heard about the Krishnamurti, nor did I know anything about him. Since I was entitled Talk to Students, I began reading it. It addressed all types of questions which arose in my adolescence age, in my mind at that time, but our teachers never discussed. Teachers are not discussing adolescence age problem in the class. Students are facing too much, but at that time, the Krishnamurti has written all these questions and discussed. He was asking students, why do you get up from your seat when the teacher comes to the class? Every time those who are teacher or when we were students, we used to get up from the bench when the teacher enters into the class. Krishnamurti asked, what is the reason? Are you respect the teacher or you are just stand up because of the fear? Is respect the same thing as fear? He was asking girls, why do you put the tika, that is red dot, on your forehead? Do you know why you do all these things? What is their significance?
Have you ever questioned yourself? What is the purpose of education? Why are you afraid of examinations? We do not talk about these things as part of our education. We just complete the syllabus. So it fascinated me, that means P. Krishna, greatly, and I wanted to read more of his books. So I went to my father to ask about Krishnamurti. And father explained that the story of how Krishnamurti grew up in the Theosophical Society, how he was discovered, and so on. There had been contemporaries, since my father also lived in the society, means Theosophical Society, till 1920, and was only 2 years younger than him, younger than Krishnamurti. Now, P. Krishna got chance to have lunch with the Krishnamurti, and now it's described in his book that lunch with him used to go on long, not just eating fast and going. The lunch was very long. Why? With interesting conversation in between. I asked him, means to the Krishnamurti, P. Krishna asked, "Sir, I have read that when you were in the Theosophical Society, people sat in a closed room and had sessions in order to talk with dead spirits, and they were occult phenomena. Was that all hallucination?" He replied, Krishnamurti replied, "No, sir." He is telling sir to the Sri Krishna. "No, sir, those things exist. It is another form of power. It has nothing to do with goodness. Therefore, I am not interested in it." Then, after a pause, Krishnamurti said and added, "Of course, the mind also has enormous capacity for hallucination." Later, I was wondering, what did he mean? I felt he was trying to convey that occult phenomena, which are the telepathy, ESP, and other psychic powers to do exist. But if one is not interested in power of any kind, power may be in the form of money, muscle, position, or status, why would one want to cultivate occult power? It is described his life in the Theosophical Society and all the politics and intrigue that took place around him. I told Krishnamurti I had read it, and he asked me, "What did you think of it?" I told him I felt it was not necessary. He asked me, "Which book is necessary, sir?" P. Krishna used to put many questions to the Krishnamurti, and the end of his talks, once after the another question, go on asking the questions and answer sessions. I want to greet him. He held my hands very affectionately, very tightly, and said, "Too many questions, my boy, too many questions." The love and affection one felt in this presence is difficult to describe or convey. He poured out in his voice, in his book, through his entire bearing and being. Thank you very much to Taral Bhai, Archana Ben, to give me chance to talk very little content of the book, Jewel on the Platter. And I am very much grateful that author is present. We met him also. And in Gujarati version, in Jyoti, our Jyoti magazine, it's coming in the episodes. And these episodes are translating in Gujarati by Harshad Dave. Thank you very much. थैंक यू राजेश्वरी जी, इट वाज वंडरफुल बोथ द टाइम. अपने समय सीमा को बांधे रखा, बहुत बहुत धन्यवाद. और हर्षद भाई, बस तुरंत मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना पार्ट 2 शुरू करें. बहुत बहुत धन्यवाद हर्षद भाई. અનમ્યુટ હર્ષદભાઈ. હાજી, ગુજરાતીમાં આપણે જે અત્યારે વક્તવ્ય ચાલી રહ્યું છે એનો બીજો ભાગ હું પ્રસ્તુત કરું છું, જેમાં જીડુ કૃષ્ણમૂર્તિના શિક્ષણનું અન્વેષણ છે. સામાન્ય રીતે આપણે કોઈ વ્યક્તિનું તેના વંશ, કુટુંબ, શિક્ષણ અને યોગ્યતા દ્વારા વર્ણન કરીએ છીએ, પરંતુ એ બધું કૃષ્ણમૂર્તિને સમજવા માટે અપ્રસ્તુત છે.
કારણ કે તેઓ જીવન મુક્ત હતા. એક મુક્ત આત્મા સાથે તેઓ જીવતા હતા. તેમની ચેતનાનું પાસું તદ્દન જુદું જ હતું, જેને પ્રામાણિક રીતે આપણે સૌ ત્યારે જ જાણી શકીએ કે જ્યારે આપણે આપણી અંદર એ ચેતનાને જાગૃત કરી શકીએ. તેને વિશે આપણે કલ્પના કરી શકીએ, અટકળો બાંધી શકીએ, પરંતુ એ મનુષ્યની ચેતનાની વાસ્તવિક સુગંધ ક્યાંથી લાવી શકીએ? એવું કરવામાં જે મુશ્કેલીનો હું સામનો કરી રહ્યો છું તેના સંદર્ભમાં મને ગીતાનો એક સંવાદ યાદ આવે છે. એમ કૃષ્ણાજી કહે છે, અર્જુન કૃષ્ણને પૂછે છે, મને જણાવો કે આ મુક્તિ અથવા આ મુક્ત વ્યક્તિ કેવી હોય છે? તે કેવી રીતે જીવે છે, કેવા કાર્યો કરે છે, કેવી રીતે ખાય છે અને કેવી રીતે સૂવે છે? કૃષ્ણમૂર્તિ લાંબો જવાબ આપે છે, પણ તેનો સાર કહું તો મને જે સમજાયો છે એ પ્રમાણે બહારથી કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિ જેવી જ દેખાશે. તે વ્યક્તિ એટલે કે મુક્ત વ્યક્તિ સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ જ ખાતી, સૂતી અને કામ કરતી હોય છે. તે વ્યક્તિ સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ જ બધી ક્રિયાઓ કરતી હોય છે, પરંતુ તે સાવ અલગ હોય છે, કારણ કે તે એ કારણે આ બધા કાર્યો નથી કરતી જે કારણે સામાન્ય વ્યક્તિ કરતી હોય છે. એમનું કારણ અલગ હોય છે. તફાવત તેની ચેતનામાં હોય છે, તે જેની સાથે તે જીવે છે, અને તેનું જ મહત્વ છે, નહીં કે તેની લાયકાત, શિક્ષણ, વક્તૃત્વ ક્ષમતા અથવા તે જે ભાષણ કરે છે તે. એ બધાનું કોઈ મહત્વ નથી. આ બધી ક્ષમતાઓ વગર પણ તેનું મહત્વ ઓછું થતું નથી. એ ચેતનાનું, એ ચેતનાના વિસ્તારને કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? તેની હાજરીમાં તેનો અનુભવ કરી શકાય છે. કૃષ્ણમૂર્તિની હાજરીમાં આપણે તેનો અનુભવ કરી શકીએ, પણ શબ્દોમાં તેનું વર્ણન કરવું શક્ય નથી. જે શબ્દોમાં જણાવી શકાય તે તો તેમના બાહ્ય કાર્યો છે. જે શબ્દ તેમની પાસેથી સાંભળ્યા હોય, જે વિચારો તેમની પાસેથી મળ્યા હોય, એ બધું છે. પરંતુ જે ચેતના દ્વારા એ બધું ઉત્પન્ન થયું તે માનસિક અવસ્થાને જણાવી ન શકાય. તે બે રેખાઓ વચ્ચે જે અનુભવાય છે તેવું છે. બે રેખાઓ વચ્ચે એટલે કે જે કહેવામાં નથી આવ્યું એ પણ સમજી લેવાનું છે. એટલે ઇન બિટવીન ધ લાઇન્સ, જો એ વચ્ચે જે અનુભવી શકાય એવું તત્વ છે. છતાં પણ કૃષ્ણજી કહે છે કે હું કોશિશ કરીશ. કૃષ્ણજીના શિક્ષણ સાથે મારો પહેલો સંપર્ક 1955માં થયો, ત્યારે હું 17 વર્ષનો હતો, 17, અને મધ્ય ભારતના મારા શહેર ઇન્દોરની એક કોલેજમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. ઉનાળાની રજાઓમાં વાંચવા માટે કોઈ પુસ્તક મારા પિતાજીના કબાટમાં શોધી રહ્યો હતો, ત્યારે કૃષ્ણજીની એક નાની પુસ્તિકા મારા જોવામાં આવી, જેનું શીર્ષક હતું ટોક્સ વિથ સ્ટુડન્ટ્સ. મેં કૃષ્ણજી વિશે કાંઈ સાંભળ્યું ન હતું, તેમજ હું તેમની વિશે કાંઈ જાણતો પણ ન હતો, પણ શીર્ષકથી આકર્ષાઈને હું તેને વાંચવા લાગ્યો. તેમાં તેઓ એવા કેટલાય પ્રશ્નોની વાત કરતા હતા કે જે મારા મનમાં પણ આવતા હતા, પરંતુ તેનો ઉલ્લેખ ન અમારા શિક્ષકો ક્યારેય કરતા કે ન તો તેને વિશે ક્યારેય કોઈ ચર્ચા કરતા. તેઓ વિદ્યાર્થીઓને પૂછતા હતા, જ્યારે શિક્ષક એટલે કૃષ્ણમૂર્તિ પૂછતા હતા, જ્યારે શિક્ષક ક્લાસમાં આવે ત્યારે તમે ઊભા કેમ થઈ જાઓ છો? કોઈએ કહ્યું માન આપવા માટે. ત્યારે પૂછ્યું, ડર અને માન વચ્ચે શું તફાવત છે? તેઓ છોકરીઓને પૂછતા હતા, માથા પર આ ચાંદલો કેમ કર્યો છે? શું તમને સૌને ખબર છે કે તમે એવું કેમ કરો છો? તેનો શું અર્થ છે? શું તમે ક્યારેય તમને પોતાને એવો પ્રશ્ન કર્યો છે કે શિક્ષણનો હેતુ શું છે? તમે પરીક્ષાથી આટલા બધા ડરો છો, શા માટે? શિક્ષણનો હેતુ શું છે? અમારા શિક્ષણમાં આ બધા પ્રશ્નો ક્યારેય પૂછવામાં આવતા ન હતા. એટલે મારું યુવાન મન આકર્ષાયું અને મારા મનમાં તેમના બીજા પુસ્તકો વાંચવાની ઈચ્છા જાગૃત થઈ. તેથી મેં પિતાજીને કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે પૂછ્યું તો તેમણે મને જણાવ્યું કે કૃષ્ણમૂર્તિ કેવી રીતે થિયોસોફિકલ સોસાયટીમાં આવ્યા અને તેમના જીવન વિશે વાત કરી. મારા પિતાજી શ્રી નીલકંઠ પદ્મનાભન તેમનાથી 2 વર્ષ જ નાના હતા, અને તેઓ પણ મદ્રાસમાં એ જ સોસાયટીમાં 1920 સુધી મોટા થયા હતા. અમારું ભોજન કૃષ્ણમૂર્તિ સાથે બહુ ધીમે ધીમે ચાલતું હતું. ઘણી બધી વાતો અમે કરતા જમતા હતા. મેં કહ્યું, સર, મેં વાંચ્યું છે કે થિયોસોફિકલ સોસાયટીમાં એક બંધ ઓરડામાં બેસીને તમે લોકો મૃત આત્માઓ સાથે વાતો કરતા હતા અને તેમની સૂચનાઓ લાવતા હતા, જેને અકલ્ટ શક્તિ કહે છે. શું એ બધો એક પ્રકારનો કાલ્પનિક ભય હતો? તેમણે કહ્યું, નહીં સર, તે બધું હોય છે. તે એક પ્રકારની શક્તિ છે જેનો ગુડનેસ એટલે કે સારપ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. એટલે મને તેમાં રસ નથી.
અને હા, આપણા મગજમાં કલ્પનાની શક્તિ પણ અસીમ છે, જે ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. કલ્પનાની શક્તિ પણ ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે એવું છે. પછી હું વિચારતો હતો કે એનો શું અર્થ છે. મને લાગ્યું કે તેઓ એમ કહી રહ્યા છે કે ટેલિપથી, ESP એટલે એક્સ્ટ્રા સેન્સરી પરસેપ્શન, ESP તથા બીજી અકલ્ટ એટલે અતિન્દ્રિય શક્તિઓ તો હોય જ છે, પણ એક ધાર્મિક મન કોઈ પણ શક્તિમાં રસ નથી ધરાવતું હોતું. ભલે પછી તે શારીરિક તાકાત અથવા ધન, મગજ, પદ, પ્રતિષ્ઠા વગેરે હોય. એટલે તે અતિ ઇન્દ્રિય શક્તિની ઈચ્છા પણ શા માટે રાખે? એ સમયે એમિલી લ્યુટિયન્સનું પુસ્તક કેન્ડલ્સ ઇન ધ સન આવી હતી. તેમાં એમના થિયોસોફિકલ સોસાયટીના એમણે જે સમય એમાં જે એમનું જીવન હતું એ વિતાવેલા જીવનનું વર્ણન હતું, અને તેમની ચારે બાજુ જે ષડયંત્ર અને રાજકારણ રમાયું તેની વિગત હતી. મેં કૃષ્ણમૂર્તિને જણાવ્યું કે મેં તે પુસ્તક વાંચ્યું છે. તેમણે કહ્યું, તે વિશે તમારું શું કહેવું છે? મેં કહ્યું, મને લાગ્યું કે એ પુસ્તકની જરૂર ન હતી. તેમણે કહ્યું, કયું પુસ્તક જરૂરી છે? હું તેમના વાર્તાલાપ પછી તેમને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછતો હતો. એકવાર આવા સવાલ જવાબ પછી હું તેમની સાથે શેક હેન્ડ કરવા એટલે કે હસ્તધૂનન કરવા ગયો, તો મારો હાથ પકડીને તેઓએ બહુ પ્રેમથી કહ્યું. શું કહ્યું? ઘણા પ્રશ્નો છે બેટા, ઘણા પ્રશ્નો છે. તેમની પાસે હોઈએ ત્યારે તેમનો જે પ્રેમ અને જે સ્નેહનો અનુભવ થતો હતો તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. તે તેમના સ્મિતથી, તેમની દ્રષ્ટિ દ્વારા, તેમના અવાજમાં, તેમના સંપૂર્ણ અસ્તિત્વમાં એ બધું છલકાતું હતું. આભાર. थैंक यू सो मच हर्षद भाई, और आप बने रहिए. कुछ आपकी भी अनाउंसमेंट आफ्टर रंजन जी करें, उसके बाद मुझे करना है. रंजन जी, ओवर टू यू. मेरे ख्याल से आप ये अगर निकाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कुछ घिसता है तो आवाज आ रही है बीच में. आपका जो माइक है ना, माइक वो शायद कपड़ों के साथ रब हो रहा है, तो उस कारण डिस्टर्बेंस आ रहा है. अच्छा, तो अगर आप डायरेक्ट बोलें हैंड्स. अभी भी आ रहे? हाँ, वो कंटिन्यूस आ रहा है. तो क्या है, कहीं घिस रहा है. आप जैसे ही हिलते हैं ना तो वो डिस्टर्बेंस आता है. वॉइस बहुत अच्छी आ रही है. अच्छा जी, लेट मी चेक. जी, ओके, थैंक यू. कृष्ण जी के जीवन की कहानी मानवता को खोजने के लिए एक पहेली और रहस्य दोनों है. किस तरह एक निर्बल निश्चय बालक जो दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में मध्यम वर्गीय कुटुंब में जन्म लेने वाला था, वो बालक सच्चाई में कोई व्यवस्थित शिक्षा या तालीम प्राप्त किए बिना 20वीं सदी के सोक्रेटिस जैसा बन गया. थियोसॉफिकल सोसाइटी के लेड बीटर और एनी बेसेंट ने 14 साल की युवा वय वाले बच्चे को कैसे खोज लिया, और जब सभी दृश्यमान चिन्ह विरोधी थे तब भावी की घोषणा की वो जगत गुरु बनेगा, और काफी विरोध और उपहास के बावजूद वो अलग रहे. लड़का निर्बल था, क्षीणकाय भी था, वो कोई शाला में जा न सका और कोई इम्तिहान में सफल नहीं रहा. बर्ट्रांड रसेल ने भी मजाक उड़ाई थी कि एन, ये तुम्हारा मिशन जा रहा है. ये सब होने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा के 1920 में उन्हें जगत गुरु आ रहे हैं ऐसी उद्घोषणा की. श्री कृष्णा लिखते हैं कि सामान्यतः जब उन्होंने कृष्णमूर्ति को कैसे जाना, मैंने इसमें वो लिखते हैं कि सामान्यतः हम व्यक्ति को उनके वंश, कुटुंब, विद्या, शिक्षा वगैरह की मदद से व्यक्ति का वर्णन करते हैं, किंतु कृष्ण जी के बारे में ये सब लागू नहीं होते. जो जीवन मुक्त आत्मा थे वो परिमाणात्मक अलग चेतना में लिए, जिसके बारे में हम अधिकृत रूप से नहीं जान सकते जब तक हम उसकी अवस्था में ना हो, उसी ही अवस्था में ना हो. उनको बयां करने में जो समस्या का सामना कर रहा हूँ वो मुझे मेरे मन में भगवत गीता का संवाद आ जाता है. अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष कैसा होता है, वे कैसे जीवन जीता है, और वो कैसे कार्य करता है, वो कैसे खाता है और सोता है.
कृष्ण विगत सबर जवाब देते हैं, परंतु उनका सारांश है, बाहर से वो सबके जैसा ही दिखता है, वो उनके जैसा ही जीता है, खाता है और सोता है, किंतु वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो सब चीजें वो ही हेतु से नहीं करता जो सामान्य लोग करते हैं। जो फर्क है वो उनकी चेतना की अवस्था में है जिसमें वो जीते हैं। वो अवस्था का कैसे प्रत्यायन हो सकता है? उनकी उपस्थिति में वह अनुभव में आती है, किंतु वो शब्दातीत है। शब्द में तो सिर्फ उनकी बाहरी क्रिया, सुने हुए शब्द, जो विचार वगैरह, किंतु वो जहाँ से आए वो मन की अवस्था या चेतना को कहा नहीं जाता। मुझे प्रयास करने दो, कृष्ण जी, श्री कृष्ण लिखते हैं, मुझे प्रयास करने दो। पहला संपर्क दिल्ली में हुआ 1958 से 59 के बीच। कृष्ण जी की शिक्षा से मेरा पहला मिलन 1955 में हुआ, जब मैं 17 साल का था और इंदौर में कॉलेज में पढ़ता था। गर्मी की छुट्टियों में मेरे पिता की पुस्तक की अलमारी में मुझे छोटी सी किताब मिली, जिसका शीर्षक था कृष्णमूर्ति द्वारा विद्यार्थियों से बातचीत, यानी चर्चा। मैंने कृष्ण जी के बारे में सुना भी नहीं था और ना कुछ उनके बारे में जानता था। मैंने पढ़ना शुरू किया। इसमें मेरे मुग्धावस्था के मन में जो भी प्रश्न उठते थे उनका जिक्र था, जिसकी चर्चा हमारे अध्यापकों ने कभी नहीं की थी। वो विद्यार्थी गण को पूछते थे, जब अध्यापक वर्ग में आए तो आप क्यों खड़े होते हैं? सम्मान और भय क्या एक ही चीज है? लड़कियां अपने भार पर लाल टीका क्यों लगाती है? ये सब का क्या महत्व है, आप जानते हैं? बाद में मैंने पिताजी से उनके बारे में बहुत कुछ जाना। बैठे, उनके साथ भोजन लंबे समय तक चलता था, जहाँ बीच बीच में रसप्रद संवाद होते थे। मैंने उनको पूछा कि सर, आप जब थियोसॉफिकल सोसाइटी में थे तब लोग बंद कमरे में बैठ के मृतात्माओं के साथ बात करने के लिए बैठक करते थे और वो सब गुह्य घटनाएं थी, क्या ये सब संभ्रम था? उन्होंने कहा, नहीं सर, ये सब का अस्तित्व है। वो अलग प्रकार की शक्ति है जिसे अच्छाई के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। थोड़े विराम के बाद उन्होंने कहा, अलबत्त मन के पास संभ्रम के लिए विशाल क्षमता है। बाद में मैं सोचता रहा कि वो क्या कहना मांगते हैं। मुझे लगा कि ऐसा कहना चाहते थे कि गुह्य घटनाएं दूर श्रवण, दूरदर्शन, विषयातीत दर्शन और बाकी आत्मिक शक्तियां अस्तित्व में है, किंतु जब किसी को किसी भी तरह की शक्ति में दिलचस्पी न हो, धन, शारीरिक शक्ति, पद, प्रतिष्ठा किसी में भी नहीं हो, तो क्यों ये शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करे? मैंने कहा कि मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में आपका जीवन सब राजकारण और उनके आसपास हो रही साजिश के बारे में पढ़ा है। उन्होंने पूछा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैंने कहा, मुझे लगता है कि ये सब जरूरी नहीं था। उनकी उपस्थिति में जो प्रेम और वात्सल्य अनुभव में आता है वो शब्द में कहना मुश्किल है। वो तो उनकी आवाज में, उनकी दृष्टि में, उनके समग्र अस्तित्व में से प्रवाहित होता है। कृष्णा ने लिखा है, कृष्णमूर्ति बहुत आनंदित, प्रेम सबर और बहुत ही भावपूर्ण थे और बहुत दिल खोलकर हंसते थे और उनमें बहुल मात्रा में विनोद वृत्ति भी थी। इसके साथ एक सेंटेंस में मैं कोट करूंगी डॉक्टर पारेख की। मैंने कनाडा से इनवाइट किया था हमारे वहाँ कृष्ण जी से बोलने के लिए। उन्होंने कहा, जब मैं MS करता था अमेरिका में, मेरे पास फ्लाइट ऑफ द ईगल बुक आई। मैंने ओवरनाइट वो बुक पढ़ ली और इमीडिएटली पहुंच गया ब्रुकवुड पार्क में, जब कृष्ण जी वहाँ थे और दूर से वो किसी के साथ बात करते थे। तब वो कहते हैं कि मैंने उनके चेहरे पर बुद्ध जैसा हेलो दिखा। मैंने उनकी आभा का दर्शन किया। तो ऐसे से कृष्णमूर्ति, जिनके बारे में श्री कृष्ण ने जो लिखा है, हम रियली वी आर ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आमंत्रित करता हूं अभी सभी वक्ताओं को कि वे मंच पर रहें, और हम अब चलते हैं श्री कृष्ण जी की ओर। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा, रंजन जी शायद उनका वीडियो चालू नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। एक छोटी सी घोषणा करना चाहता हूं कि आप सभी लोग पहले तो आज बधाई दें कि हर्षद दवे जी का आज जन्मदिन भी है, और वे 70 साल के हो गए हैं आज। और फिर भी उनके पारिवारिक कुछ कार्यक्रम थे, लेकिन बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा, इतनी बड़ी वो बात है तो। और एक और घोषणा करना चाहूंगा कि उन्होंने काफी सारी किताबें यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें से कुछ किताबें मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, ठीक से दिखेगा नहीं आपको, एक मिनट में आता हूँ। उन्होंने एक किताब है जो जे कृष्णमूर्ति जी की लिखी हुई है, व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, तो उसी का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर शायद आपको दिखेगा अभी। क्या आप देख सकते हैं? તમે તમારા जीवन સાથે શું કરી શકો છો, इस टाइटल से उन्होंने उसे गुजराती में किया है। एक अन्य और किताब है जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। आज लेखकों की बात हो रही है और हम लेखकों के बीच हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीज शेयर करूं। दूसरी जो किताब है वो किताब है द बुक ऑफ लाइफ, जिसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है इन द नेम ऑफ જીવનનું પુસ્તક। पुस्तक। जी, मैं कहूँ टाइटल साथे बताओ तो जीवन पुस्तक और द बुक ऑफ लाइफ, ये दोनों किताबें हमारे अपने हर्षद दवे जी ने लिखी हैं। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की, और आप इसी तरह से लेखन कार्य में लगे रहें। गुजराती में तो लिखें ही, और साथ ही साथ प्रचारित प्रसारित करते रहें थियोसॉफी सोसाइटी को। ये हमारी ओर से आपको बहुत बहुत एक विनम्र गुजारिश है। और कृष्णा जी, आप यहाँ हमारे बीच हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर जो कोई भी प्रश्न पूछना चाहता हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो कृष्णा जी से पूछ सकते हैं। और आप अपना हाथ भी ऊंचा कर सकते हैं, मैं उन्हें स्पॉटलाइट में ले आऊंगा, या आप डायरेक्टली माइक अनम्यूट करके कह भी सकते हैं। और आप में से कोई अगर प्रश्न के लिए इस वक्त तैयार ना हो, तो मैं कुछ 2-3 प्रश्न करना चाहता था कृष्णा जी से, कि आपको ये किस तरह से लगा कि ये जो किताब है वो आपको लिखना चाहिए, या आपको उनके बारे में अदर देन हिज सब्जेक्ट्स, उनके जीवन की शैली के बारे में लिखना चाहिए, ऐसा आपको अलग सा विचार कैसे आया? सर अनम्यूट कर लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि उनकी टीचिंग्स के बारे में और जीवनी के बारे में तो कई पुस्तकें हैं जो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला था उनसे रूबरू होने का। तो उसके दौरान जो महसूस होता है वो उनकी पुस्तकों को पढ़ने से या बायोग्राफी को पढ़ने से महसूस नहीं होता। तो मेरा ये आशय था कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ उनके बारे में, और जो मेरा एहसास रहा उनके संपर्क में आकर, उससे आने वाली पीढ़ी को अवगत करा दूं। जिस हद तक एक पुस्तक अवगत करा सकती है, there are limitations in that. You can't express everything in words. Yes. लेकिन जो तथ्य मैं जानता था
वो मैं लिख दूं, सब तारीफ करने के लिए नहीं और बदनाम करने के डर से भी नहीं। मेरा एक वैज्ञानिक मन है जो कहता है कि सत्य ही लिखना चाहिए। तो वो बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पुस्तक को लिखा और उन्हीं बातों को लिखा है जो मैं या तो निश्चित रूप से जानता था या जिन लोगों ने मुझसे बताया उनके ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है, जैसे रोहित मेहता जी या राधा बर्निए और अन्य। दूसरा मेरा ये था कि जिस प्रकार मुझे उनसे संपर्क हुआ और उस संपर्क का अनुभव हुआ, और लोग तो और भी उनके करीब रहे, मैं उनके साथ कभी जिया नहीं, एक ही घर में रहा नहीं और ट्रैवल भी नहीं किया मैंने उनके साथ। मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता था, तो मैं एक विद्यार्थी की तरह था उनकी टीचिंग्स का, और जब भी मौका मिलता था तो उनसे बात करता था और बहुत सारे सवाल करता था। तो वो मुझे एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में जानते थे जो इस इंक्वायरी में आस्था है, जिसकी जो वास्तव में प्रेरित है उससे। इसलिए फिर मैंने उन लोगों से प्रश्न किए जो उनके अधिक नजदीक थे, ताकि केवल मेरा इम्प्रेशन ही नहीं जाहिर करूं, लेकिन और लोगों को क्या इम्प्रेशन हुआ उनके बारे में वो भी उस पुस्तक में मैंने लिखा है। तो 4 चैप्टर हैं, जो एक विमला जी से मैंने बातचीत करी और अच्युत पटवर्धन साहब से बातचीत करी और मार्क ली से बातचीत करी। तो ये लोग सब तो 30-40 वर्षों तक बहुत नजदीक से उनके साथ जिए और उनके साथ में रहे और उनके साथ यात्रा भी करी उन लोगों ने। वो सौभाग्य मुझे उतना प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वो भी सब कुछ, जो कुछ भी मैं जानता था और जो कुछ मैं जान सका, वो सब कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए इस पुस्तक में जाहिर किया है। जी, बहुत बढ़िया बात है। आपकी बातों से मुझे एक जिज्ञासा हो रही है, अगर इजाजत हो तो पूछूं कि आप जी, आपने कहा कि आपने जीटू कृष्णमूर्ति से बहुत सारे प्रश्न किए, तो एक बड़ा अजीब सा सवाल कि क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपके संस्मरण में है या आप किताब में नहीं लिख पाए, जिसका उन्होंने बड़ा उत्तर वैसा दिया हो जो आपके जहन में ही नहीं था? नहीं, जितने भी प्रश्न थे जो खास थे वो तो सब पुस्तक में मैंने लिख दिए, क्योंकि पुस्तक कई महीनों तक लिखी गई है, तो जब भी जो कुछ भी याद आता था वो वापस उस पुस्तक में डाल देता था। लेकिन एक संवाद का वर्णन मैं करना चाहूंगा जो थोड़ा, इसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं कि इम्पर्टिनेंट थोड़ा जी। वो उन्होंने भाषण दिया था यहाँ राजघाट में असेंबली हॉल के अंदर कि ये जो स्वार्थ का क्षेत्र है, ईगो फील्ड है, इससे बाहर निकलो, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी अच्छी बात पनपेगी नहीं। उस समाज में कोई बदलाव लाना है तो तुम्हें इसको छोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए। तो मैंने ये प्रश्न किया कि बुद्ध निकल गए और जीसस क्राइस्ट शायद निकल गए और कृष्णमूर्ति आए हैं और वो भी चले जाएंगे,
लेकिन समाज तो उसी तरह चल रहा है, योग क्षेत्र उसी तरह चल रहा है। तो आप इस क्षेत्र से बाहर निकलने को इतना महत्व क्यों देते? क्योंकि वो आदमी ने भी कुछ अपने ही लिए नहीं किया, क्या अब उसके मन में शांति रहती है, उसको सौंदर्य का आभास रहता है वगैरह, लेकिन वो समाज में और लोगों को की मदद तो नहीं कर पाता। तो उन्होंने पूछा, ये सवाल कौन पूछ रहा है? जो ईगो के क्षेत्र में है। मैंने कहा मैं तो वहीं से पूछ सकता हूँ क्योंकि वहीं मैं हूँ। तो बोले उस जो व्यक्ति उस क्षेत्र में है उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को फायदे और नुकसान के रूप में आंकता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, एंड दिस इज नॉट ए रिवॉर्ड। ये कोई प्राइज नहीं मिलता है जो व्यक्ति मुक्त होता है। मैंने कहा वो मुझे समझ में आता है, लेकिन मेरा प्रश्न फिर भी बना है कि यह व्यक्ति जो निकल के क्षेत्र से बाहर जाता है वो दूसरों की मदद तो नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा मदद से आपका क्या मतलब? तो मैंने कहा कि मदद या तो उसको अपनी कैद से आप निकाल सको तो निकाल, और यदि कैद से नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम उस कैद के अंदर की जो स्थिति है उसको भी कुछ बेहतर कर दो। वो भी उसको भी मैं मदद मानता हूँ। तो बोले कि क्या जेल के अंदर थोड़े और अच्छे पंखे, अच्छे पर्दे लगा दिए जाए? मैंने कहा कि हाँ, जब आप अगर उस जेल को तोड़ के उसको निकाल नहीं सकते, मतलब प्रिजन ऑफ कंडीशनिंग, उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते जी, तो चलो यातना ही कम हो जाएगी, उसकी उतनी बड़ी मदद होगी, मतलब सोशल वर्क। तो फिर उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर निकलता है जी, तो उसका असर पूरी मानव चेतना पे पड़ता है, क्योंकि पूरी मानव चेतना एक है। ये जो हम लोग हर एक आदमी की अलग अलग चेतना गिनते हैं, ये सच नहीं है, ये भ्रम है। पूरी मानव चेतना एक है। तो अब मेरे गहराई से बाहर था, तो फिर मैं चुप हो गया। ये संवाद याद पुस्तक में लिखा है। जी जी, वही मैं कहा कि पुस्तक में बड़ा उद्दंड था, आए और चले जाएंगे, आप जो कर रहे हो उसका क्या महत्व है? जी, लेकिन आपने ये संवाद छेड़कर हम लोग सारे लोगों को ऐसा लगा उनके सामने ही बिठा दिया और आप दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे हो। बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया। हमें भी थोड़ी सी उनकी स्वभाव का या उनका अनुभव हुआ। और वो जब लिखते थे या बात करते थे तो बहुत सीरियस किस्म के होंगे। हम लोग तो मतलब अधिकांश लोग मिले नहीं है, या वो जब इस टीचिंग्स के बारे में या जीवन के बारे में बात करते थे तब बहुत सीरियस थे, लेकिन जब वो बाकी सब चीजों में आपसे मिलते थे वगैरह तब सीरियस नहीं थे, खूब हंसते थे, बोलते थे, मजाक करते थे। लेकिन उनके लेक्चर में आपको मजाक वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ा सा कोई ऐसे उनका मजाक याद हो आपको? तो मैंने पूरा चैप्टर लिख दिया है। अच्छा, ओके, मैं पढ़ूंगा फिर वो। हम सभी पढ़ेंगे, पर यहाँ आप हैं तो जो ना लिखा हो ऐसा का टाइटल है जोक्स दैट कृष्णमूर्ति टोल्ड। उनको बहुत अच्छे जोक्स उनको अच्छे लगते थे, तो वो हम लोगों को सुनाते थे कभी कभी। उनके लेक्चर बाद में मिलते थे, कभी तो सुनाते थे। वो सब भी संग्रहित कर दिया मैंने एक चैप्टर में। पर कोई तो ऐसा जोक होगा जो आप संग्रहित न कर पाए या मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ? नहीं, पूछ सही रहे हो, लेकिन ये अभी याद नहीं ना है तो। अच्छा, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं सर, याद करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। भाई अन्य कोई और प्रश्न पूछना चाहे? यस जी बोलिए। हाँ राजेश पद्मनाभन जी, जी, आपको ये हमारा त्रिवेणी का ये प्रयोग कैसा लग रहा है? मतलब आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। नहीं नहीं, ये जो प्रयोग है 3 तो भाषा में जो तरल जी कर रहे हैं, तो ये जो है वो आपको कैसा लग रहा है? वही बता रहा हूँ, खतरा लग रहा है मुझे, खतरा लग रहा है, क्योंकि मैं तो ईगो को छोड़ना चाह रहा हूँ और आप लोग उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, ये अच्छा, तरल जी इसके पीछे बहुत नहीं, मेहनत करते हैं। राजेश्वरी जी, उनका मतलब यह है कि एक भाषा में होता तो ठीक था, पर 3 भाषाओं में वो ट्रिपल बैरल गन से उनके ईगो को कम कर रहे हैं शायद। नहीं, वो तो खाली ट्रांसलेशन की बात है, लेकिन वो एक भाषा में भी जितना आप लोगों ने मेरी तारीफ की है वो सच नहीं है। नहीं सर, तारीफ नहीं है, ये सबको जानना चाहिए। ऐसे नहीं है कृष्णा जी, मैं कोई पोलाइटनेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। मैं उस चेतना के साथ थोड़ी जीता हूँ जिस चेतना के साथ मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। मतलब जैसे सोक्रेटिस की चेतना के बारे में हमें प्लेटो के थ्रू मालूम हुआ, है ना? तो प्लेटो सोक्रेटिस थोड़ी थे, प्लेटो तो सोक्रेटिस का वर्णन कर रहे हैं। तो नहीं, लेकिन वर्णन करने की भी क्षमता होनी चाहिए ना सर। अब तो वो तो प्रोफेसर आदमी का काम है। आप भले सोक्रेटिस ना हो, पर कम से कम प्लेटो है, स्वीकृति की, इसके लिए धन्यवाद। मैं कृष्णमूर्ति के लिए वही हो सकता हूँ जो सोक्रेटिस के लिए प्लेटो था, तो मुझे संतोष है उतने में। पर कृष्णा जी, मतलब राजेश्वरी जी, हर्षद जी तो जुड़े हैं, पर रंजन जी भी जब जिद्दू कृष्णमूर्ति और उसका सुना तो वे भी बहुत प्रभावित हैं और वो बहुत अध्ययन भी करती हैं। तो उनसे भी मैं कहूंगा कि कुछ वो शेयर करना चाहें या कुछ करना चाहें, क्योंकि उन्हें हमेशा विषय के बाहर बहुत सारी चीजें मालूम होती है। अबान जी आप कहिए, फिर रंजन जी कहेंगे। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अबान जी। Good evening, sir. Good evening. I had the pleasure of having the book being signed by you when I had attended your talk. If you can see your own handwriting and your own signature. Yes, thank you. And at that time, we were told how the title of the book came to be. So that is a very interesting talk which you can share with us once again. Because the jewel on a silver platter. Yeah, I know. That's how did this come to? See, when he wanted to appoint me and give me charge of Rajghat Education Center, he called us, me and my wife, to his room, and this is how he said. He said, I am offering you a jewel on a silver platter, and I am asking you, will you take it? Those were the words. तो इसलिए उन शब्दों को मैंने पुस्तक का टाइटल बना दिया। अंदर उसके जब पूरा डिटेल में उनके साथ बात हुई, वो काफी लंबी चौड़ी है, तो वो आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में है, इंटरैक्शंस विद कृष्णमूर्ति करके। उसमें डिटेल में दिया है मैंने कैसे उन्होंने किया। वो पढ़ने लायक है क्योंकि उसमें उनका व्यक्तित्व जाहिर होता है पूरा। जी, किसी और ने कभी कोई जॉब ऑफर इस तरह से दिया हो ऐसा मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। अनोखा, उन्होंने न तो मेरा बायोडाटा देखा, न मुझसे पूछा कुछ मेरे बारे में। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं तो किसी को अपॉइंट करता हूँ तो सब उसका बैकग्राउंड पता करता हूँ, रेफरेंसेस मंगाता हूँ, उनका बायोडाटा देखता हूँ, उसके बाद तय करता हूँ सोच समझ के। उन्होंने कहा कि मैं उस तरह से नहीं करता हूँ, मेरा सब he does it from his heart.
I do it from my mind. बहुत फर्क है, वो उस तरह की चेतना बहुत अलग तरह से काम करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनसे कहा कि आप चलिए, आप मुझे ज्यादा जानते नहीं, लेकिन राधा जी जानती हैं, वो तो मेरी बहन है, तो वो आपको जानती हैं और फाउंडेशन को जानती हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये सही होगा क्या, ये जॉब के लिए मैं सही व्यक्ति हूँ क्या। तो उन्होंने कहा आई डोंट नीड एडवाइस सर, मैं इस तरह से नहीं करता किसी से पूछ पाछ के, मेरे इट इज डन हियर, अपने हार्ट को बता के, with me it's all done here. So it's like you fall in love with somebody, so that time you don't consult anybody and so on. So जी जी धन्यवाद बहुत बहुत जी। और कोई प्रश्न पूछना चाहता हो? चंद्रकांत शिंदे जी तो हैं ही, हर्षवर्धन जी भी हैं, बहुत सारे, सुषमा जी भी हैं। प्रश्न तो नहीं है जी, लेकिन I must congratulate your all efforts and putting this book in front of all public, which is very important to study. And I also grateful to Professor P. Krishna. If P. Krishna is throwing some light, I will be happy on the psychological fear, not the physical fear, but the psychological fear which Krishnamurti was speaking about. That is of fear of idea, fear of ideal, fear of schedule, fear of all these are beliefs. So this psychological fear is very important than the physical fear. हाँ सर, बट जो सेकंड पार्ट ऑफ द बुक है, इसमें इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द टीचिंग्स टाइटल दिया गया है, वो पूरा का पूरा इसी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो उसको पढ़िएगा, मुझसे सुन के क्या होगा। Okay. वहाँ मैंने सब व्यक्त कर दिया। Thank you, thank you. I am grateful to Harshad bhai कि he has undertaken the task of translating my book into Gujarati, so that many readers in Gujarat who are not very strong in English would also be able to get a taste of it. जी ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने वही कहा। और देखिए आज संयोग ऐसा है कि मेरे ख्याल से हर्षद दवे जी ने सोचा ही नहीं होगा कि जन्मदिन के दिन जिस लेखक की वो किताब ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो लेखक भी साथ में मौजूद है और हम सब साथ बना रहे हैं उस विषय के साथ। तो मेरे हम लोग पुराने मित्र हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद, आप सबके आशीर्वाद मेरे साथ है। आज मेरा जन्मदिन है भी है, तो इस उपलक्ष्य में आप सबको प्रणाम वंदन करता हूँ, कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू। हर्षद भाई, हाँ बोलो बोलो हर्षद। આપને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। અને આજે એક વિશેષ રીતે પી કૃષ્ણાજી આપણી વચ્ચે છે। जी बहुत सरस। और मैं ये बात हिंदी में बताना चाहूंगा ताकि हर कोई समझ सके। गुजराती लोग तो समझते हैं हिंदी। बिल्कुल। और पी कृष्णा जी, आपके बारे में बबाभाई पटेल, प्रोफेसर बबाभाई पटेल, जिन्होंने काफी पुस्तकें गुजराती में अनुवाद करके कृष्ण जी का जो भी लिटरेचर था वो गुजराती भाषा में गुजराती लोगों के लिए प्रस्तुत किया था। और वो बातें उन्होंने कुछ 65 से लेकर कुछ 82 तक वे बातें बताई थी। बबाभाई पटेल का बड़ा नाम था, जिनकी वजह से हम कृष्ण जी को सुनने जाते थे बम्बई में। और ये एक चांस था मेरे लिए ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 73 एंड 75। तो कॉलेज खत्म होने के बाद वो बातें सामने आई। और सबसे पहले जो पाठ मैंने हायर सेकेंडरी में पढ़ाया था वो था कृष्णमूर्ति ऑन एजुकेशन। उसके पहले मैं कृष्ण जी को नहीं जानता था। और एज अ टीचर जो बात मुझे पढ़ाने में आई कृष्णमूर्ति ऑन एजुकेशन, तब मैंने सोचा कि इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा।
तो बाबा भाई ने मुझे बताया कि ये पूरा बुक है कृष्णमूर्ति ऑन एजुकेशन, आप उसको पढ़ो। तो वहां से इस तरह से शुरुआत होती है। एक किसी लेखक, कोई दार्शनिक, कोई भी ऐसा आदमी जो हमारे लिए पथ दर्शक बनता है, तो हमारे लिए एक ऐसी बात होती है कि उसकी शुरुआत कुछ पुस्तकों से होती है, कुछ उनके व्याख्यानों से होती है, उनको सुनकर होती है। तो आज उनके व्याख्यान सब इंग्लिश में थे ना। क्योंकि उनको इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती थी, वो तेलुगु वगैरह भी भूल गए थे। हाँ, सही बात। तो इसलिए फाउंडेशन ने सब भाषाओं में उनकी पुस्तकों को ट्रांसलेट करने का जिम्मा लिया हुआ है। तो हिंदी में भी 14-15 की पुस्तकें राजघाट से ही ट्रांसलेट हो करके बिकती हैं उनकी। और ये वाली की पुस्तक भी वहीं से ट्रांसलेट हुई। राजघाट में जो लोग ट्रांसलेट करते हैं उन्हीं लोगों ने ट्रांसलेट किए है। और एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिसको अंग्रेजी में पढ़ने की सुविधा नहीं है, उसके लिए अगर आप हिंदी की पुस्तक चाहते हैं तो ये पब्लिशर ने उसकी प्राइस बहुत ज्यादा कर दी है। तो अगर आप मुझे लिखेंगे तो मैं वो 40% डिस्काउंट मुझे मिलता है एज एन ऑथर, वो मैं आपको पास ऑन कर सकता हूँ ताकि वो इतनी महंगी ना पड़े। सही बात है। किताब अच्छी बात है। ये इस तरह से हमारे लिए एक ऐसी चीज बन जाती है कि जिसका कुछ आधारभूत हमारे पास हो और हम स्टडी कर सके। मेरा सवाल ये है पी कृष्णा जी आपसे जी, कि मैं काफी उनके बारे में मैंने पढ़ा जी, 2-3 बार उनको सुनने का मौका भी मिला जी। और जो बातें हम डेली लाइफ में, जिससे हम जो टेंशन है, किसी के साथ कुछ अनबनी सी हो जाती है, कुछ हमारे रिलेटिव्स हमें कुछ ऐसी स्थिति में ला देते हैं, तब ईगो सामने तो आता ही है। और कुछ देर ऐसी अवस्था में रहने के बाद कृष्ण जी को जो भी पढ़ा है वो हम उसका आकलन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तब वो सब बातें चली जाती है। ऐसा मैंने महसूस किया है कई बार। और खास करके थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य करते हुए मैं बड़े फ्रैंकली आपसे कह रहा हूँ कि वो कार्य करते हुए कई ईगोइस्ट बातें हमारे सामने आती है कि जिसमें हमें डिसीजन लेना भी कभी कभी तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तभी कृष्ण जी खास याद आते हैं और ये सोचते हैं कि चलो भाई ये ईगो की बात खत्म करो और आगे चलो। तो वो आगे चलने की बात हमारे लिए क्या बात है? मैं बताता हूँ। हाँ जी। ऐसा है कि एक मेटाफर के रूप में बताता हूँ, शायद समझने में आसानी होगी। बरगद का पेड़ होता है ना, तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं और बड़ी मजबूत सी जड़ होती। तो वो ईगो जो है वो जड़ के रूप है, जड़ है। और ये जो उसकी अभिव्यक्ति होती है अपनी चेतना में, कभी हिंसा का भाव आता है, कभी जलसी आती है, कभी द्वेष आता है, घृणा आती है, वायलेंस आता है, तो डर लगता है, या दुख होता है, सौरो आता है। ये सब अलग अलग ब्रांचेस हैं उसकी। तो हम लोगों को एक ब्रांच अपने चेतना में महसूस होती है किसी समय पर, हाँ, जो भी हादसा हुआ है उसकी वजह से, और हम लोग इंक्वायर करते हैं और उस समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन जब उसका समाधान आप कर लोगे, लेकिन जड़ तो बनी रही। जब जड़ बनी रही तो फिर दूसरी समस्या आएगी। इसलिए जीवन पूरा जो हो है वो एक समस्या के बाद दूसरी समस्या से जूझते रहना बन जाता है। तो कृष्ण जी की टीचिंग ये थी कि जब एक आपके अंदर उठा, मान लीजिए हिंसा भाव उठा या घृणा द्वेष जो भी आया, तो वो तो महसूस होता है क्योंकि इट्स अ डिसऑर्डर इन कॉन्शियसनेस, उसका पेन होता है। तो वो मौका है आपका, है ना, खाली उसका निवारण करने के लिए नहीं, वो मौका है क्योंकि वो ब्रांच जो है वो पूरा ईगो से कनेक्टेड है।
तो आप खाली उसका निवारण करके संतुष्ट न हो जाइए, उसको treat it as an opportunity to learn about yourself deeply. So continue with the inquiry even after the pain is gone, so that you reach the root and you can uproot the whole tree. So then that is mukti. तो इसीलिए मुक्ति नहीं हो पाती कि एक एक समस्या का समाधान तो हो जाता है। राइट। एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगा। आज कुछ ऐसी बातें हो रही है कि जिसमें कृष्ण जी के बारे में कई लोग सोचने लगे हैं, कई लोग सारी दुनिया में ऐसी बातें भी बता रहे हैं, जैसे कि उनके लेक्चर्स आज बहुत अवेलेबल है, उनके बारे में भी कई चीजें अवेलेबल है। आज यूपीएससी, जीपीएससी, कई सारी एग्जामिनेशन जो हमारे इंडियन लेवल आईएएस ऑफिसर बनने के लिए भी कृष्ण जी के बारे में भी जनरल नॉलेज में काफी पूछा जाता है। अब मैंने कृष्णमूर्ति जर्नल उसका गुजराती में ट्रांसलेशन करना शुरू किया और अभी उसकी एक बाकायदा एक चीज हर महीने उसको मैं गुजराती में पेश करता हूं, जो हमारे रोहित लॉज के कार्यक्रम में वो मुकर्रर है। लेकिन मैं ये उसको ट्रांसलेशन करने के बाद मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि कृष्ण जी ने नेचर को इतना करीब से देखा है और कभी भी बड़े कोबरा को देखकर कभी भी उन्होंने वो डर महसूस नहीं किया। वो तो ऊपर से उसकी ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं कि आगे कोबरा जा रहा है, वो एक टीले पर चढ़ रहा है, वो अपना एक सही जो जगह है उस दल में जा रहा है, या और फिर गांव वाले वहां पर आ जाते। ये बात वहां पर ओहाई से आगे जो दूसरी एक जगह पर वो रहे थे 75 में, वो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि उसके नजदीक मत जाओ। कई लोग दूसरे दिन वहां पर फूल ले आते हैं, कई दूध भी ले आते हैं। कृष्ण जी कहता है कि इतनी अच्छी बात, यानी कि उसको स्पर्श करने के 2 इंच या 3 इंच की दूरी पर ही कृष्ण जी है। तो लेकिन देखिए इसमें एक समस्या है। हम लोग प्रभावित होते हैं कृष्ण जी से और उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उससे अपनी समझ नहीं बढ़ती। तो उनका आकलन करना और उनकी तारीफ वो अपनी जगह पे गलत नहीं है, लेकिन वो अपनी समझ बढ़ाने का वो नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया। और उनकी पुस्तकों का ज्ञान जो है उससे भी आपकी चेतना बदलेगी नहीं। मतलब वो ज्ञान यूजफुल है इन द सेंस कि उसमें कई प्रश्न हैं जिनसे आप जूझें तो आपकी समझ बढ़ सकती है, लेकिन विषय कृष्ण जी की टीचिंग नहीं है, उनकी पुस्तक विषय नहीं है, आप विषय हो। ये बात उन्होंने क्लियर की है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ जो दैट इज नॉट द ट्रूथ, पॉइंटिंग टू द ट्रूथ। तो उसको अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो आप उस सत्य तक पहुंच सकते हो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन सत्य तो अनुभूति है, सत्य विचार नहीं है। तो विचार तो आप ग्रहण कर लोगे लेकिन अनुभूति नहीं होगी आपको। तो the truth lies, the question, the answer is not separate from the question. These are his words. It lies inside the question. So you have to investigate the question yourself in your life, daily life, through observing your own consciousness. क्योंकि आप विषय हो, आपकी चेतना विषय है, उनकी किताब आपका विषय नहीं है। तो कॉलेज में पढ़ते हैं लोग, तो उनकी शिक्षा का ज्ञान जो है उससे आपकी चेतना में बदलाव नहीं आता। ये बड़ी समस्या है। तो लोग अधिकतर उस ज्ञान को हासिल कर लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो इंक्वायरी है, यानी आपको बुद्ध ने जिस तरह से अपनी चेतना में सत्य को देखा, वो काम आपको करके उसी सत्य तक आपको पहुंचना है। खाली बुद्ध ने जो कहा उसका ज्ञान उससे नहीं होता, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर फिलॉसफी का प्रोफेसर है, वो तो आपको सब कुछ बता देगा बुद्ध के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में, लेकिन वो इनमें से किसी की भी चेतना उसकी चेतना नहीं है। सामान्य चेतना है, उसको ईर्ष्या, घृणा सब कुछ होता है उसके अंदर, मन के अंदर। तो इसलिए ज्ञान द्वारा चेतना में परिवर्तन नहीं होता। ये बड़ी भारी चीज उन्होंने समझाई कि ज्ञान से नहीं आ सकता। यू हैव टू कम अपॉन परसेप्शन, और इसीलिए गुरु को नकारा उन्होंने।
हाँ, गुरु इसमें कोई नहीं है, कोई आपको सत्य दे नहीं सकता, क्योंकि सत्य एक अनुभूति है। अनुभूति आपको कोई दूसरा गुरु नहीं दे सकता। प्रश्न दे सकता है, संकेत कर सकता है, और उसका कोई गिला भी नहीं है। ठीक है, वो करना चाहिए, वो खुद भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका गुरु नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको सत्य नहीं दे सकता। सत्य तो आपको, तो वो जो आत्मदीपो भव वाला बात है ना, you have to be a light unto yourself. So you are the teacher and you are the student. There is no separate. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम दो प्रश्न हैं। एक तो हरदीनाथ जी हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में पूछा, और एक अर्चना जी पूछ रही हैं। उसके पहले चूंकि लोग यहाँ हैं, तो मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर दूं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति पर अगले वीक भी हमारा जो कार्यक्रम चालू रहेगा, उसके बारे में 2 अंश की जानकारी दे दूं कि 10 मई को जो स्पीकर्स रहेंगे वो एनसी कृष्णन रहेंगे, वो मूल स्पीकर रहेंगे। विभा सक्सेना जी हिंदी में रहेंगी और वर्षा पटेल जी गुजराती। तो आप सब लोग जो भी यहाँ पर है जरूर आए, और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। ओवर टू अर्चना जी, और फिर शायद हरिनाथ जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका प्रश्न ले लें। बोलिए अर्चना जी। प्रणाम कृष्णा जी, बहुत ही जान के आनंद हुआ। मेरा प्रश्न थोड़ा सा व्यक्तित्व जेके जी के बारे में है। मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ। वो मुझे जानना है ऐसे ही, क्योंकि चूंकि आप उनसे मिले हुए हैं, ये प्रश्न को क्या वो भी हम जैसे जैसे उनकी कमेंट्रीज में पढ़ा है कि वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट थे, सब कुछ बहुत बारीकी से थे, तो क्या वो भी ऐसे कोई आर्ट फॉर्म जैसे म्यूजिक को भी चाहते हो, डांस को भी चाहते हो? ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं जाननी, मुझे खाली जानना है कि वो एक सरल स्वभाव के, जो आपने बोला कि ठहाके मार के भी हंसते थे, तो क्या उन्हें कुछ ऐसी चीजों से भी लगाव था क्या, जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया? आर्ट से लगाव नहीं, सौंदर्य की अनुभूति बहुत तीव्र थी उस चेतना में। तो पंडित जसराज वगैरह का म्यूजिक सुनते थे, उधर साउथ में जाते थे, शुभलक्ष्मी जी का म्यूजिक तो फाउंडेशन के लोग ये सब ऑर्गेनाइज करते थे उनके लिए, उनके ड्राइंग रूम में। और प्रकृति के वर्णन तो आपने देखे हैं, तो उनको सौंदर्य का आभास बहुत तीव्र था, क्योंकि सेंसिटिविटी उनकी मेरे ख्याल से अपने से कम 10 गुनी थी, 10 गुनी थी। बहुत थैंक यू सो मच। और हरिनाथ जी, आप हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना वीडियो चालू कर सकते हैं। मैं प्रश्न चाहूंगा कि आप ही पूछ लें, अगर आप हो तो। Sir, actually, my video is not clear. Actually, I'm outside. You can please ask the question, sir. Sir, it is a great honor to ask the question on this platform, and I'm really obliged to have sharing the platform with all you adult people. So my question here is, I was attracted to JK, but one question in my mind is like, how to pursue a thing with all our senses. He used to say this, to pursue a thing with all your senses. You have to learn to pursue a thing with all your senses. But is it possible actually? That is one question. And the second question is like, what is the difference between mind and the heart? ये कई तरह repeated हो रहा है. Like people used to tell like, you have to listen your heart, you have to listen your mind. So इसमें मेरे को confusion आ रहा है कि किसकी बात सुनूं, मतलब नहीं, ऐसा है कि माइंड से अपना मतलब होता है इंटेलेक्ट से, so that is being cultivated in education and all that. Heart is the emotions, so those that is related with sensitivity, your perception of beauty, your feeling of sympathy or love or compassion. These are sensitivities. So how strongly you feel that depends on your sensitivity. So what our education does is it distracts our attention towards the intellect. So intellect की भी जरूरत है और emotions की भी जरूरत है. You require a balance between the two. I mean, between reason and love, you need a balance between the two.
A person who is only intellectual can be very cruel, and a person who is only emotional can be neurotic. So the art of living is to have this balance between the two. अपना एजुकेशन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो इसीलिए वो एजुकेशन को बदलना चाहते थे, क्योंकि आपका शरीर माने फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों अंग जो हैं, ये इनके ऊपर ध्यान देके उनका विकास, चारों का विकास होना जरूरी है। लेकिन हम लोगों का खाली दिमागी विकास होता है। तो 1984 में बॉम्बे में टॉक दिया उन्होंने, वो आप देख सकते हैं क्योंकि आजकल सब टॉक्स वीडियो पे यूट्यूब पे हैं। तो 1984 में बॉम्बे में उन्होंने टॉक दी, उसमें उन्होंने कहा है कि पुट योर इंटेलेक्ट इन योर हार्ट, इट हैज नो वैल्यू आउटसाइड इट। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, इट हैज नो वैल्यू आउटसाइड इट। तो ये जो हम लोग करते हैं कि खूब इंटेलिजेंस को करके, और वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत इंटेलिजेंट है, वो रॉकेट कैसे मून पे जाता है वगैरह वगैरह, उसकी सबकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके अंदर प्रेम और करुणा का वास नहीं है चेतना में। तो क्योंकि वो सब आप लड़ाई करने में यूज करोगे उसको। सो दिस वाज हिज टीचिंग, दैट put your intellect in your heart. It has no value outside. Thank you, sir. और मैं सोचता हूँ कि अब समय हो रहा है, 10 हो रहे हैं। करल जी, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जी जी। यदि अनुमति हो, समय अनुमति देता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अनुमति। और अशोक जी लोखंडे जी भी हैं, दो लोग के वार्ता के बाद हम समापन करेंगे। श्री कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको 2 बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और अपने आनंद लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी में सुना। मेरा आपसे एक जिज्ञासा है, और वो ये प्रश्न है कि जय कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि जब कोई व्याख्यान देता है तो श्रोता उस समय सोचता है कि व्याख्यान समाप्त होने के बाद मैं यह प्रश्न करूंगा। तो जैसे अभी संवाद चल रहा है, तो क्या ये प्रश्न उठना स्वाभाविक नहीं है? लेकिन ये मेरे मन में प्रश्न उठा और आपने जवाब दिया कि ज्ञान द्वारा चेतना में परिवर्तन नहीं आता, सत्य एक अनुभूति है और वो स्वयं प्राप्त होती है। तो जो मैं प्रश्न सोच रही थी, उसका जवाब आपने स्वयं ही दिया। मैं कुछ और विस्तार से इसका उत्तर चाहती हूँ जी, आप दे तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी जी। तो जो नॉर्मल रिलीजन्स ने कहा है और जो कृष्ण जी ने कहा है, उसका अंतर यह है कि रिलीजन कहता है कि ये चीजें वर्च्यूज हैं, इनको प्रैक्टिस करो, और ये सब वाइसेस हैं, इनको मिटा दो अपने से। तो आप विल को यूज करते हो इसको प्रमोट करने के लिए और उसको दबाने के लिए, और ये विल जो है ना, ये ईगो का ही रूप है। तो ईगो से मुक्ति नहीं होती इस सब से करने से। तो जो हम लोग सामान्य रूप से करते हैं कि पश्चाताप करते हैं, जज करते हैं, बुरा लगता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया वगैरह वगैरह, क्रोध क्यों किया, तो वो सीखने की प्रक्रिया नहीं है। तो उनका ये कहना है कि यदि अपनी चेतना में जेलसी या घृणा आपको दिखाई देती है, तो उसका दमन नहीं करो, उसको सप्रेस नहीं करो। वो आपको इन्फॉर्म कर रही है कि कहीं न कहीं आपकी समझ में कमी है जीवन के प्रति, और वहाँ इसलिए ये आ रही है आपकी चेतना के अंदर। तो उसकी तहकीकात करो कि ये कहाँ से आती है, और तहकीकात कैसे करोगे? खाली दिमागी तौर पे नहीं, खाली विचारों के थ्रू नहीं, क्योंकि विचार तो आपकी कंडीशनिंग से आते हैं, मेमोरी से आते हैं, तो वो कलर्ड होते हैं, कलर्ड इंस्ट्रूमेंट से। तो विचार से आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अवलोकन से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अवलोकन इज नॉट ए रिएक्शन प्रोसेस। तो उसमें ईगो नहीं है, वॉचिंग अवेयरनेस में ईगो नहीं है। So that is one instrument which is not affected by the ego, provided you are honest, if you really want to understand yourself. So it is an opportunity. He said कि jealousy का तिरस्कार नहीं करिए, उसको जज करके कि नहीं होना चाहिए, कि हाय मेरा क्यों
जलसी आ गई। वो जलसी आई तो मौका है अपने बारे में सीखने का कि ये कहाँ से आई मेरे अंदर, और उसको अवलोकन द्वारा सीख हासिल करो। तो अपने आप को अवलोकन करके अपने आप के बारे में सीखना है, वो खाली विचारों से नहीं होता है। The vichar is just one fragment. Intellect is just one fragment of your personality. The whole personality, all the senses, your body, everything is involved in perception. So perception is a holistic thing. Awareness is a holistic thing. And thought is a fragmentary thing. इसलिए खाली विचारों द्वारा नहीं पहुंच सकते वहां पे। जी। थैंक यू ये नहीं कि विचार थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अशोक जी कुछ अंतिम शब्द, उसके बाद हम अतुल भाई आगे बढ़ेंगे समापन की ओर। तरल जी जी, मैं कृष्णा जी को वंदन करता हूँ। बहुत सालों से मैं उनका फैन रहा हूँ, क्योंकि जय कृष्ण मूर्ति को मैं कभी सुना नहीं, मैंने सुन नहीं सका। लेकिन जब भी अड्यार में इनके लेक्चर्स होते थे तो हमें एक अलग आयाम में इनके जो विचार है अभी सभी ने अनुभूत भी किया है। और मेरा सौभाग्य है कि जब एमपी सिंघल जी वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल थे तो उनके घर में मुझे प्रेसिडेंट एमटीएफ के नाते उन्होंने बुलाया था, और अनायास वहां पर कृष्णा जी थे एज ए गेस्ट। तब से मेरा उनका संवाद हुआ, और उन्होंने जो गाइडलाइन वहां पर कुछ 5 मिनट के उनके उपदेश में दिया कि किस तरह थियोसॉफी का प्रचार करना चाहिए, वो बहुत ही यूजफुल रहा। मैं उनको फिर से वंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व अगर आप बार बार लाएंगे तो नए लोग जो है जिनके कंफ्यूजन है जिस तरह से वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन का उत्तर देने के लिए भी उतनी जो स्टडी है या जिनको ये कहो जो गॉड गिफ्टेड है वो होना चाहिए। तो मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं कि आज का जो पूरा सेशन रहा और कृष्णा जी का जो भाष्य रहा, वहां फिर से एक बार मैं जय कृष्ण मूर्ति को ही थोड़ा अनुभव किया कि उनकी जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जय कृष्ण मूर्ति हमें ही प्रश्न पूछते थे और उसके उत्तर हमको ही ढूंढना था, जो आज कृष्णा जी ने स्पष्ट किया। मैं उनको फिर से नमन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। अशोक जी धन्यवाद। और आपने कहा कि आपने 5 मिनट में कृष्णा जी से काफी सारा ज्ञान लिया प्रचार और प्रसार के लिए। तो कृष्णा जी मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करता रहूंगा फोन करके, क्योंकि ये ज्ञान आपसे जरूर प्राप्त करना चाहूंगा अगर आप मुझे अपना शिष्य बनाना चाहें तो। धन्यवाद। और अतुल जी प्लीज समापन की ओर बढ़िए। આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર। કેશોરબેન હવે આપણને COM નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું। કેશોરબેન આપનું સ્વાગત છે। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सभी को धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और हम लोग 10 तारीख को पुनः